Commerce includes two types of activities: trade and auxiliaries to the trade. Buying and selling of the goods is termed as the trade. But there are a lot of activities that are required to facilitate the purchase and sale of the goods. These are called services or the auxiliaries to the trade and includes transport, banking, insurance, communication, advertisement, packaging, and warehousing. Commerce therefore includes both buying and selling of the goods, that is trade, as well as auxiliaries such as transport, banking, etc. So the first point, trade. Trade is an essential part of the commerce. It refers to the sale, transfer, or exchange of the goods. It helps in making the goods produced available to the consumers. These days, goods are produced on the larger scale, and it is difficult for the producer to reach out every individual buyer for selling their product. So businessmen are engaged in trading activities to make the goods available to consumers in the different markets. In the absence of the trade, it would not be possible to undertake production activities on the larger scale. Trade may be classified into two broad categories: internal and external. Internal trade is also called domestic or home trade, which is concerned with buying and selling of the goods and services within the geographical boundaries of a country. These may be further divided into wholesaler and the retailer. When the goods are purchased and sold in comparatively smaller quantities for final consumption, it is referred to as retail trade. And when the larger quantities are purchasing for the final consumption, that is what wholesaler trade. External or foreign trade, that is the next type of the trade, which consists of exchange of the goods and services between persons or organizations operating in two or more countries. If the goods are purchased from another country, it is called import trade. And if the goods are sold to other countries, it is known as export trade. But when the goods are imported for export to other countries, it is known as entrepot trade. First, trade. Trade is the essential part of commerce. The next part of the commerce is auxiliaries to the trade. Activities which are meant for assisting trade are known as auxiliaries to trade. These activities are generally referred as services. These are not in the form of goods, because these activities nature are facilitating, it means supportive, in the form of transport, banking, insurance, warehousing, and advertising. In fact, these activities supports not only the trade but also the industry and hence the entire business activities. These activities helps in removing various hindrances which arise in connection with the production and the distribution of the goods. So the first activity, auxiliaries to the trade, that is transport and communication. Production of the goods generally takes place in the particular location. For example, tea is mainly produced in Assam. Cotton is produced in Gujarat and Maharashtra. Jute is produced in West Bengal and Odisha. Sugar is produced in Uttar Pradesh, Bihar and Maharashtra, and so on. But these goods are required for consumption in the different parts of the country. The obstacle of the place is removed by transport through road, rail and coastal shippings.
Transport facilitates movement of raw material to the place of production and to the place of consumption. Along with the transport facility, there is also a need of communication facilities so that producers, traders, and consumers may exchange information with one another. Second, banking and finance. Business activities cannot be undertaken unless funds are available for acquiring assets, purchasing of raw material, and meeting other regular expenditures. Necessary funds can be obtained by the businessman from a bank. Thus, banking helps business activities to overcome the problems of the finance. Banks also undertake collection of the checks, remittance of the funds to the different places, and discounting of the bills on the behalf of traders. Commercial banks also helps promoters of the companies to raise the capital from the public in the form of equity shares, debentures, as well as cash credit is another facilities provided by the banks and the financial institutes. Third point, insurance. Business involves various types of the risk. Factories, buildings, machineries, furniture, etc. must be protected against fire, theft, and other types of the risk. Employees are also required to be protected against the risk of accident. So, the insurance provides protection in all such cases. The amount of loss or damages and any kind of the compensation for injury can be recovered from these insurance companies. Warehousing. Usually, goods are not sold or consumed immediately after production. They are held in stock to make them available as and when required. A special arrangement must be made for the storage of goods to prevent loss or damages. Warehousing helps business firms to overcome the problem of storage and facilitates the availability of goods when needed. Price thereby maintained at the reasonable level throughout the continuous supply of the goods. So the fifth and the last point of the auxiliaries to the trade, that is advertising. Advertising is one of the most important method of promoting the sales of product, particularly consumer goods like electronic goods, automobile industries goods, soaps and detergents. Most of these goods are manufactured and supplied in the market by numerous firms. These firms may be big or small. Practically, it is impossible for any producers to contact each and every customer. So, the advertisement convey the information about the goods features, product features, price, and various information to the consumers. And it also induces the consumers to buy the particular product. Students, now we are moving towards the next topic, that is what multiple objectives of business. Actually, business का कोई एक objective नहीं हो सकता है. That's why we have to discuss multiple objectives of business. So what is the objective? Objective का मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उस एक्टिविटीज को करने के दौरान. So objectives are needed in every area that influence the survival and prosperity of business. Since
A business has to balance a number of needs and goals. Business को कई सारे needs, goals और objectives में संतुलन बनाना होता है. It requires multiple objectives. It cannot follow only one objective and expect to achieve the excellence. Business कभी किसी एक particular objective पर काम नहीं कर सकता. Objectives have to be specific in every area and every sphere of the business. For example, हम बात करते हैं business के कुछ objectives के बारे में. Like the sales targets have to be set. हमें सेल्स के टारगेट सेट करने पड़ते हैं वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, 6 मंथली और ईयरली. कितना सेल्स हमें करना है, ये एक ऑब्जेक्टिव है हमारा. उसी के साथ द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड हैज टू बी एस्टिमेटेड एंड द टारगेट. उसी के साथ हमें कितना पैसा हमें कहां से लाना है, हाउ मच मनी वी विल रिक्वायर एंड फ्रॉम वेयर वी विल रेज दिस मनी. ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल, हमें 10 करोड़ की जरूरत पड़ेगी अगले 6 महीने में, और वो 10 करोड़ का जो पैसा हम कहाँ से लाएंगे, ये कहाँ से लाना है, कितना लाना है, ये पूरा फुलफिल भी करना है. ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. इसी के साथ द थर्ड ऑब्जेक्टिव, द टारगेट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज व्हाट द थर्ड ऑब्जेक्टिव. हमें कितनी यूनिट्स, कितना प्रोडक्ट की यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी है, तो ये पहले हमें पता लगाना है कितना यूनिट्स हमें बनाना है, फिर उस यूनिट्स को बनाना है. दैट इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव. सो इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस को, जिसके बीच में उसको संतुलन, बिजनेस हैज टू मैनेज अ बैलेंस अमंग ऑल दिस ऑब्जेक्टिव्स. सो द ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन इन कॉन्क्रीट टर्म्स व्हाट द बिजनेस इज गोइंग टू डू. इसका मतलब बिजनेस आखिर में क्या करने जा रहा है, ये उसके ऑब्जेक्टिव से ही पता चलता है. और जो कुछ बिजनेस करता है ये उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, दैट इज फॉर मार्केट स्टैंडिंग. मार्केट स्टैंडिंग refers to the position of an enterprise in relation to its competitors. बाजार में स्थिर रहना, बाजार में बने रहना, it is called market standing. A business enterprise must aim at standing on a stronger foot in terms of offering competitive products to its customers. एक बिजनेस को अपने प्रोडक्ट, अपने मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले एक क्वालिटी और एक क्वालिटी और एक कम रेट में प्रोडक्ट को देना है. कम रेट ना भी हो तो हमारा प्रोडक्ट बेहतर होना चाहिए हमारे कॉम्पिटिटर से, तभी हम मार्केट में, बाजार में टिके रह सकते हैं. इट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेसमैन, दैट इज फॉर मार्केट स्टैंडिंग. सेकंड, इनोवेशन. इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया. जब भी हम कोई नया चीज लेकर आते हैं, आप देखते होंगे हर एक प्रोडक्ट का जब टीवी पर एडवर्टीजमेंट आता है तो उसके साथ में न्यू वर्ड यूज करते हैं. आ गया है नया हेड एंड शोल्डर, तो नया मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट के अंदर कुछ उन्होंने अपग्रेडेशन किया है. दे हैव डेवलप्ड द न्यू प्रोडक्ट. सो द इनोवेशन में बी इन टू वेज. नंबर फर्स्ट, इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई द प्रोडक्ट. इनोवेशन दो तरीके से किया जा सकता है. पहला, इनोवेशन प्रोडक्ट के अंदर किया जा सकता है, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हों. फॉर एग्जांपल शैम्पू की हम बात करें तो उसके अंदर वो बताते हैं कि वी हैव एडेड मिल्क, वी हैव एडेड विटामिन ई फॉर द स्ट्रॉन्गर हेयर. इस तरीके से वो कुछ अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ नई बात बताते हैं. और दूसरा, डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, जैसे कि होम डिलीवरीज. ये एक तरह का उसका फीचर है. जैसे डोमिनोज का फीचर है कि हम होम डिलीवरी करते हैं, आप ऑर्डर करिए, हम आपको घर पर ला कर देंगे. सो इट इज अ न्यू आइडिया. जोमेटो और स्विगी, दिस आर ऑल्सो द अनदर एग्जाम्पल. तो ये एक तरीके का प्रोडक्ट उनका नहीं है, बट ये एक इनोवेशन आइडिया है. ऐसे ही हमारे देश में कई सारे ग्रोसरी स्टोर्स, किराना शॉप्स भी अब होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं. जैसे बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आते हैं जिसमें कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं. ये इनोवेशन है. कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आओ. फर्स्ट 5 ऑर्डर्स पर हम 10% का डिस्काउंट देंगे. कुछ इस तरीके से और भी कई सारे आइडियाज हो सकते हैं.
थर्ड आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है हम उसका बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। प्रोडक्टिविटी इज असर्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। हमारे पास जितने भी इनपुट्स थे हम उससे बहुत ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लें, वही कहलाती है प्रोडक्टिविटी। इट इज यूज्ड एज द मेजर ऑफ एफिशिएंसी। इससे हमारी एफिशिएंसी का पता चलता है। In order to ensure continuous survival and progress, every enterprise must aim at greater productivity through the best use of the available resources. और प्रोडक्टिविटी से ही किसी बिजनेस का लाइफ का पता चल पाता है कि कितने लंबे समय तक वो कंपनी टिके रह सकती है। तो कम से कम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, दैट इज व्हाट द प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, बिजनेस को रनिंग मोड में रखने के लिए एवरी टाइम वी हैव टू यूज फिजिकल रिसोर्सेज एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब वे सभी रिसोर्सेज जो हम काफी लंबे समय तक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड फिजिकल रिसोर्सेज लाइक बिल्डिंग, मशीन, टूल, इक्विपमेंट्स, दीज आर द फिजिकल रिसोर्सेज। साथ में हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। So without money, we cannot manage all these activities. So proper utilization of all physical and the financial resources, ये business का objective है. No wastage of the resources we want. So what is the physical and financial resources? Any business requires physical resources. So मैंने आपको बताया था प्लांट, मशीन्स और ऑफिस के बारे में। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है मनी, जो पैसा हम लेते हैं बैंक से इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट एक्वायरिंग दिस रिसोर्सेज और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हमें करना है। नेक्स्ट आता है इसका फिफ्थ पॉइंट, अर्निंग प्रॉफिट। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। Profitability refers to the profit in relation to the capital investment। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जब हम लगाते हैं बिजनेस के अंदर तो उसको कैपिटल बोलते हैं कि बिजनेस में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बिजनेस में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया एक साल के अंदर, तो वी वांट सम रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। हमें उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए। जैसे कि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, वी वांट इंटरेस्ट, दैट इज व्हाट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हम इतना सारा बिजनेस में जो पैसा लगा रहे होते हैं, तो वी आल्सो वांट द रिटर्न, दैट इज व्हाट द प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए इंटरेस्ट से, क्योंकि इंटरेस्ट में तो हमने कोई रिस्क नहीं लिया। बैंक में हमने पैसा रखा, नाउ वी आर गेटिंग द इंटरेस्ट, देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व्ड। बट इफ वी आर डूइंग द बिजनेस, इट इन्वॉल्व्स मोर रिस्क, सो वी वांट मोर प्रॉफिट। So the earning profit is the another objective of the business and we want to earn more profit. Sixth, manager performance and development. हर एक बिजनेस को जो मैनेज करता है वो मैनेजर कहलाता है। वो सारे फाइनेंशियल, फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज कर ही बिजनेस कर पाता है। यहाँ पर मैनेजर का डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। डे बाय डे हमारा जो मैनेजर है बहुत इफिशिएंट होना जरूरी है, जिससे कि फायदा बिजनेस को ही मिलता है। The business enterprise needs manager to conduct and coordinate various business activities, various programs for the motivating managers to be implemented। और इस तरीके से हमारे जो बिजनेस के अंदर जितने भी मैनेजर्स हैं उन सभी को मोटिवेट, उनको डायरेक्टेड करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा बिजनेस एक अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सके एक टाइम के अंदर, और हमारा पूरा बिजनेस एक कंट्रोल्ड और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बिजनेस के अंदर रहे। नेक्स्ट आता है वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड देयर एटीट्यूड। जैसा कि हमने देखा, एक मैनेजर बहुत ही मोटिवेटेड होना चाहिए। मैनेजर एक डायरेक्शन दे सके, एक टीम को लीड कर सके, उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए एवरी टाइम, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर जो मैनेजर जिन लोगों को मोटिवेट करता है, मैनेजर जिन लोगों से काम करवाता है, तो वर्कर्स का परफॉर्मेंस में भी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट्स आने चाहिए। तो मैनेजर का जो बिहेवियर है वर्कर्स के साथ वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साथ में वर्कर्स का परफॉर्मेंस भी, उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होनी चाहिए।
वर्कर्स का एटीट्यूड जब काम करने के दौरान है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए. सो इट इज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड्स. लेट्स workers' performance and attitudes determine their contribution towards the productivity and profitability of any enterprise. Therefore, every enterprise must aim at improving its workers' performance and their attitude. Their attitude must be positive. Last आता है social responsibility. जैसा कि बिजनेस एक सोसाइटी के अंदर ऑपरेट होता है, सोसाइटी के लोगों के द्वारा ऑपरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वर्कर. बिजनेस जो प्रोडक्ट बनाता है वो सोसाइटी में ही बिकता है. सो बिजनेस की कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि इसी सोसाइटी से वो बिजनेस अपना सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पा रहा है. सो द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस फर्म्स टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स. समाज में से कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो बिजनेस को फिक्स करनी चाहिए, सॉल्व करनी चाहिए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये बिजनेस की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस लोकेलिटी में वो बिजनेस सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे. जो प्रोडक्ट वो बिजनेस बना रहा है वो क्वालिटेटिव हो, उससे कोई हार्म ना हो सोसाइटी को. ऐसा कोई उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं होना चाहिए जो किसी की हेल्थ को अफेक्ट करता हो. बिजनेस जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर वर्क कर रहा है तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ना हो, ये बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हो रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसे बहुत सारे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करनी चाहिए. बिजनेस को अपने आसपास में लोगों के लिए स्कूल या कुछ दूसरी फैसिलिटीज देनी चाहिए. बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटीज देनी चाहिए, या फिर उस लोकेलिटी के सभी लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करवानी चाहिए. सोशल पार्क्स, पब्लिक पार्क्स, ऐसी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवानी चाहिए. रोड कनेक्टिविटी, कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट भी बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो फुलफिल करते रहना चाहिए. इसे CSR भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी.